Hello, everyone, and welcome to the Brand Veda Talk Show. हेलो एवरीवन, very very good afternoon. 12 बज गए और we know everyone is in a holiday mood and everyone is having their mini vacation right now. सब लोग खुद के मजे कर रहे हैं अपना, but you guys are few of the people who chose knowledge over everything else. So today we are here again on the Saturday sessions of Brand with a guest talk, and we have Satvik Patel with us. I think, Naman, I think let us ask everyone to start their camera. So let us start. Dhaval, Vijay, absolutely, sir. Shreya, let's start your camera. I think this is so important. And I'll tell you one thing which is so important, that it's all about investing in yourself. And the more you invest, the more you grow. Exactly. And the best part is, if you want to become something, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, try to chase those people. So let's say if you want to become like Tendulkar, please start chasing people like Tendulkar. People who have achieved results. This is again very important because someone who is doing an activity and has achieved something, जिसने कुछ काम किया और achieve किया, they can give you a lot of insights. That's why we always say that a trainer, a mentor, a book, a course can change your life forever. And that's why today is so important. I'm super duper excited to see Satvik here, and Satvik is doing an amazing job. You're very young, Satvik. And I still remember, we used to do drop shipping, together before Corona time. Yes, sir. Yes, sir. And he's It's all because of your support, sir. I can't do it alone. Thank you so much. So let's go ahead. Let's start your camera, Bhavan, Dipari, Dhaval, Pina, Lopesh. Let us start with your camera. एक बार सब लोग अपना camera चालू कर दीजिए before we start. And I'll tell you that, people are changing their life. People are taking action. And knowledge is power. When you mix knowledge with execution, keep this in mind. So knowledge with action is a very powerful action. Shreya, Bhaven, let's start your camera. एक बार फटाफट कैमरा शुरू कर देते हैं. Before we start this, Deval, Bhaven, Upesh, Jyoti, go ahead. Somesh, go ahead. Let's start your camera. So I think we are good to go. Bhaven, go ahead. Bhaven, Kushi. Let us start quickly. एक बार शुरू कर देते हैं. Let us start, Naman. Let us start. Yes, we all are recording. We are good to go. So before we start, let us know who we have here. Satvik Patel is a person who started Girdaj Agarbatti, and he has a great e-commerce store and has been doing great with it. Even we have Agarbatti sent to us, and it's about the way he built this particular way of business, and coming from absolutely zero to become a hero, and that's what his journey has been. He has been working with Saurabh sir before Corona, and he has been doing a lot of stuff. So yeah, that's who he is, and that's what he has to share right now. He has come here to share some special insights about e-commerce and Facebook ads, and how he has successfully managed to get good business from an e-commerce store. So go ahead, Sarthik. Tell us what you do, how you have done it, and go ahead, man. So basically, ई-कॉमर्स में मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रिटेल स्टोर का है. मेरा फादर है, वो 5 to 6 रिटेल स्टोर ओन करते थे. तो मैं जब 6-7 था तो तब से मैं रिटेल स्टोर पे बैठता था. तो मुझे कंज्यूमर एक माइंडसेट पता था कि रिटेल कंज्यूमर रहता है तो उसका माइंडसेट कैसा रहेगा. तो एग्जैक्टली मुझे थोड़ा बहुत कंज्यूमर माइंडसेट पता था. फिर मैंने 12th के बाद रिसर्च करना चालू किया कि क्या कैरियर ऑप्शंस है मेरे पास. तो मुझे ये फील्ड ई कॉमर्स का और डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये तो बेस्ट ऑप्शन है. क्योंकि मुझे क्या था, कंज्यूमर का माइंडसेट पता था, तो मुझे लगा कि मैं बहुत स्केल पे स्केल कर सकता हूँ. तो ये माइंडसेट के साथ मैंने चालू किया, थोड़ा बहुत रिसर्च किया. फिर मुझे ब्रांड विदा मिला, तो सौरभ सर के कोऑर्डिनेशन वो सब पहले मैं सीखा. उसके बाद सौरभ सर के साथ मिलके ही मैंने पहला जो स्टोर चालू किया था. उसके बाद इन बिटवीन द कोरोना मैंने यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में करीब अराउंड 7 to 10 lakhs का सेलिंग किया. फिर उसमें मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखा, तो मैंने बोला कि ये तो एड्स चलाओ, उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता भी था
पर उसमें मार्जिन थीन था, और दूसरी बात कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे थे। तो मैंने बोला ये सब कितने देर तक चलेगा, तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। मैंने बोला चलो एक ब्रांड बनाते हैं। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। मैंने बोला अपने घर में ही मेरा फादर का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का, तो मैंने बोला पहले इससे ही चालू करते हैं। क्या इसके अंदर क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट भी पता है, और प्रोडक्ट में एक श्योरिटी रहता है कि प्रोडक्ट नो डाउट कि कोई उसके अंदर गलत नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे फादर का 20 इयर्स का बिजनेस है, तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने चूज किया है ये। तो मैंने बोला चलो इसको चालू करते हैं। और शायद मैंने दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में चालू किया था। और अभी मेरे पास 10,000 के आसपास का कस्टमर बेस है। और अभी मैं एड्स भी बहुत कम चलाता हूँ, और हमारा कस्टमर रिटेंशन रेट 90% के आसपास रहता है। तो यही है मेरा जर्नी। Nice, nice, nice. And e-commerce is booming, Satvik, eh? या यस सर, यस सर। Yes, e-commerce is growing. सर लाइक ही सेड, कंज्यूमर का माइंडसेट जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको मतलब मिला वो रिटेल के स्टोर से। सो दैट्स व्हाट एन ई कॉमर्स स्टोर इज, राइट? वो ई कॉमर्स स्टोर से क्या होता है, इट्स बेसिकली रिटेल स्टोर बट ऑनलाइन, और ये D2C कर रहे हो उसमें भी, नॉट अ B2B, नॉट अ B2C, इट्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। सो वो स्टोर का पूरा ओरिएंटेशन भी किया, कंज्यूमर का माइंडसेट लेके फिर ई कॉमर्स चूज किया, विच इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप आई बिलीव। और उसके वजह से आई गेस 10,000 का कस्टमर बेस बना है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, डेफिनेटली द गुडविल दैट यू पोजेस, और आपके जो बिजनेस टैक्टिक्स थे उसके लिए वो मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ देता है। 100%. And I think before we go, Satvik, let us show them Giriraj website. So एक बार website आपको दिखा देते हैं. So Naman or Satvik, Yeah, anyone surely, show ma'am. his website. Let us check his website. Guys, he's doing amazing job. 10,000 customers. And I'll tell you that every dream starts small. This is his website. Nice. This So is let us put this link in chat as well. And for appreciate, let's appreciate Satvik. You are doing amazing job. You are so young. And I think one thing, I always tell to my student is, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, which is, you are taking action. Now, I've seen a lot of people, they are very good with knowledge, but they lack when it comes to execution. And execution is power. So this is his website. Satvik, can you go through this website? Can you tell me what all products do you have on your website? What exactly you sell? Some categories. We sell, sir, multiple products, like but basically in the 3 categories. First one is agarbatti, second one is dhoop stick, and third one is dhoop corn. So we don't sell all the puja items, but we specialize in the incense and the fragrances. So the one thing we can guarantee is you will not find the fragrance we manufacture, because we R&D it and make it in our own. We do not trade, or we do not copy someone. So that's the USP. Right. Nice. So let us go through website के part पे कुछ चलते हैं. Let us see the products and also nice storefront. So probably some very important tips we're going to learn today is how we're going to optimize it. Some quick pointers. We'll talk about that. But let us go through the website, guys. You can go through Giriraj website. एक बार मुझे लगता है लिंक भी एक बार शेयर कर दीजिए. Let us share this link. Fine. Let us go, everyone. And I think this we have developed on Shopify, if I'm not wrong. Yes, sir. Nice. That's what we teach. That's our first lesson, sir. That's our first lesson whenever a person comes to enrolls in a. Nice. It's an amazing product. You have done photography and all. So Shopify क्या करता है सर कि आपका जो डेवलपिंग का जर्नी है बहुत ही हद तक बहुत इजी कर देता है, और उसके साथ उसके कोरस्पॉन्डिंग टूल्स है, जैसे आप रिव्यू का देखो, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का देखो, या फिर ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग एंड नोटिफिकेशन मार्केटिंग। सो ये सब भी उसके अंदर फीचर्स अवेलेबल ही रहता है, और बहुत ही आपको इजी बना देता है। अगर आप वेबसाइट बनाना मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते, तो इजीली आप वेबसाइट बना सकते हो इन द टाइम स्पैन ऑफ, मतलब मुझे लगता है 2 दिन में कोई बंदा आराम से अच्छी से वेबसाइट बना देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप ही है ना, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप है सेक्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप। Are you using, I guess you're using some premium themes, Satvik? Yeah. So we always suggest that go for premium themes. They're more stable, more customizable. सर या तो कस्टमाइजेबल है, और दूसरा चीज क्या है सर इसके अंदर कि
लाइट बहुत है। जैसे इसके अंदर एक खुद का इसका एक फीचर है कि आप जो भी फोटो डालोगे, तो हम क्या डीएसएलआर से फोटो शूट करते हैं, तो वो एडिटिंग करके बाद भी 4 to 5 MB का रहता है। तो वो भी आप इसके अंदर डालोगे तो वो ऑटो ऑप्टिमाइज करके ऑटोमेटिक उसका सेटिंग करता है। और फर्स्टली जो है वो HTML लोड करता है, उसके बाद जो है इमेजेस लोड करता है। तो वो उसका ऑटो सिस्टम है। और दूसरा चीज उसके अंदर ये है कि शायद आपके पास ओल्डर वर्जन है तो भी आपका वेबसाइट ऐसा ही दिखेगा। बाकी कई सारे सिम्स हैं जो फ्री नहीं होती। ओल्डर जो वर्जन है फोन्स में तो थोड़ा दिक्कत आता है मोबाइल एक्सपीरियंस। सो ये बेसिकली जो प्रीमियम है और जो फ्री है उसके अंदर एक डिफरेंस रहता है, ये मेन डिफरेंस। Nice, nice. So let us get to our agenda for the day, which is primarily dependent upon Facebook ads and e-commerce and how you have started this. कैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी रही, कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया टू प्रमोट अ प्रोडक्ट विच इज अगरबत्ती और धूप स्टिक और एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू इट, क्यों आपने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स को चुना? बिल्कुल। मुझे क्या है 7th 8th में मैंने जैसा आपको बताया, जो कंज्यूमर माइंडसेट पता था। और मुझे एक चीज क्लियर था कि देखो मैं अभी सर्विस इंडस्ट्री में जाऊंगा तो उसका मुझे माइंडसेट नहीं पता है, मेरे पास उसका कोई प्री जो चीज है वो है नहीं। बट मुझे पता था कंज्यूमर माइंडसेट क्या था। बट तो मैंने सोचा कि क्या करते हैं अभी इसको स्केल पे कैसे ले जा सकते हैं। अभी मास उसको मास सेलिंग कैसे हो सकता है, कैसे मैं ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकता हूँ। तो तभी मैंने रिसर्च चालू किया। वहां मुझे पता चला कि ई कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां से आप ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड सेल कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और उसके अंदर इसके तो पढ़ना ही है, पढ़ना है कैसे भी करके इसके अंदर वेबसाइट्स बनाना है, क्या करना है। फिर मैंने बोला मुझे कंज्यूमर माइंड से पता था, उसे मतलब बिजनेस का एक प्रॉपर आइडिया था मुझे कि कैसे होता है। तो मैंने बोला इसका जो मेन क्रूशियल पार्ट है वो क्या है, कि जैसे मैं वेबसाइट तो चलो मैंने बना भी लिया था, पर क्या करूंगा, वेबसाइट बना के कोई आएगा तो नहीं, कैसे आएगा। तो वहां पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग पता चला, चलो ये मार्केटिंग पूरा करना पड़ता है। उसके अंदर फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, टिकटॉक एड्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक, फेसबुक ऑर्गेनिक, कई सारे जो वेरिएंट्स है। तो मुझे पता चला, मैंने बोला ये सही है, इसके अंदर से आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके बाद उसको रिटर्न करके एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वहां से मैंने वो चालू किया था। अच्छा, तो मतलब इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कंज्यूमर का माइंडसेट जानना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 7th 8th से आपने कंज्यूमर का माइंडसेट का मतलब स्टडी चालू हो गई थी? स्टडी चालू हो गया सब कॉन्शियसली। वो क्या है कि ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। आप रोज कंप्यूटर चलाओगे तो आप क्या है कि जैसे 3 4 साल में आपको नहीं भी कुछ उसके अंदर इंटरेस्ट होगा तो भी पता हो जाएगा, ये सब कुछ ऐसा ही होता है। आइडिया हो जाएगा, यस। सही है वो, उसके वजह से आई मीन 10,000 का कस्टमर बेस, क्लाइंटल बेस इज अ बिग बिग डील, क्योंकि 10,000 लोगों को बेचना एंड उन तक पहुंचना पहली बात ही इतना बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि और दैट्स व्हाट द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ही आपको 10,000 लोगों तक ट्रैकेबल, पूरा 100% ट्रैकिंग के साथ बता सकता है कि 10,000 लोगों तक पहुंचा है। नॉट इवन ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग, आप होर्डिंग वोर्डिंग चला दो उसमें वो लिमिटेड हो जाता है, तुम ट्रैक तो नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट मेजर इट। मूविंग फर्दर, आपने जब चालू किया, ई कॉमर्स चालू किया, तो आपने शॉपिफाई चुना। और शॉपिफाई कितना इजी रहा और कितना ऐसे देखा जाए तो डिफिकल्ट भी है, क्योंकि वंस यू गेट इनटू अ टूल और वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हो तो वो मतलब एकदम 100% घुसने के लिए भी पूरा जी जान लगाना पड़ता है। तो देर आर पोजिशंस ऑफ जॉब पोजिशंस ऑफ शॉपिफाई डेवलपर एज वेल, व्हिच मींस देयर इज सम क्रिटिकलिटी एंड थोड़ा टेक्निकलिटी उसको भी चाहिए। तो कितना इजी रहा और कितना डिफिकल्ट भी है? पहले जब मैं चालू कर रहा था तो मेरे पास शॉपिफाई का बेसिक प्लान भी लेने का मतलब ऐसा पैसा नहीं था, ऐसा नहीं, बट उसके अंदर मैं हिचकिचा रहा था कि क्या करूं, लूं ना लूं। तो सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस पे पूरा वो सीखा और वू कॉमर्स के इंटीग्रेशन के साथ मैंने पूरा वेबसाइट बनाया था। ठीक है। तो उसमें मुझे मंथ लग गया था, 1 महीना लग गया था पूरा डेवलपमेंट, उसका जो प्लगइन्स आता है वो सभी, और उसके मोबाइल में अलग ऑप्टिमाइजेशन रहता है, उसमें डेस्कटॉप पे अलग ऑप्टिमाइजेशन रहता है, कहीं पे भी आप टैबलेट में भी अलग ऑप्टिमाइजेशन रहता है, वो सब कुछ मैंने किया था।
ठीक है, मेरा पहला वेबसाइट था फैशन विद फन, वो मैं यूएस में सेल कर रहा था। अच्छा। और वहाँ उसके लिए मैंने सब कुछ किया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये वर्थ इट नहीं है। मैं अच्छा। मार्केटिंग करूँ, मैं कंज्यूमर जो माइंडसेट है उसका एनालिसिस करके उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो दूं, या फिर मैं डेवलपिंग करूँ। राइट तो राइट। वहां से मुझे दो मतलब रास्ते दिखे थे। मैं जा सकता था डेवलपिंग में भी जा सकता, मैं करके वो भी शायद डेवलपर भी बन जाता था। बट फर्स्टली मैंने बोला आपको पहले से मुझे कंज्यूमर माइंडसेट और इसमें इंटरेस्ट था कि मास जो सेलिंग है वो कैसे हो। तो मैंने बोला चलो अभी तो शॉपिफाई से ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उस समय क्या था कि शॉपिफाई में एक चीज था, वो 15 डेज का फ्री ट्रायल दे रहा था। उस पर ब्लैक फ्राइडे कुछ था तो वो 30 डे का फ्री ट्रायल दे रहा था। तो राइट। मैं क्या करता था पहले 5-7 महीने क्या किया था मैंने 15 डेज हो उसके बाद अकाउंट बदल के मैं फ्री ट्रायल से ही वो कंटिन्यू कर रहा था। तो मैंने 5 to 7 months कुछ पैसा दिया नहीं था शॉपिफाई को, बट मेरा काम बहुत अच्छा चल गया था, तो उसके बाद मैंने पेड प्लान ले लिया था। राइट 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 राइट। नाइस। और मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल दिस प्लेटफॉर्म, लेट इट बी वूकॉमर्स, लेट इट बी Magento, लेट इट बी वर्डप्रेस, लेट इट बी एनी साइट, I'm also a super duper fan of Shopify because the ease of execution is very good. और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, द मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द साइट्स दैट पीपल यूज फॉर ई-कॉमर्स इज शॉपिफाई। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर ई-कॉमर्स की दुनिया में प्रॉब्ली शॉपिफाई ही होगा अभी। शॉपिफाई इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसा सात्विक जैसा आपने बताया, it's so important that when we start, it's all about starting, and struggle always going to happen. The point is it going to be a good struggle or a bad struggle? You did amazing job and everything happened. So one very important सात्विक जो आपने point बताया, it's all about mindset है। करने वाला किसी भी हाल में कर देता है, और सबके साथ स्टोरी ऐसे ही होता है। When you start your business, someone is starting their own business. I started my business because I still remember when I started my business with less than 100 square feet office, I bought chair and table on rent. So we have been through all these days and this happens. So this is a story, untold story of entrepreneurs, Indian entrepreneurs. Sir, when I joined this course, there was you showed us an example कि एक स्टूडेंट है, उसने टूटे हुए फोन पे पूरा कोर्स अटेंड किया था, एंड शी इज नाउ प्लेस्ड एट InVideo एंड अर्निंग गुड एंड हेल्पिंग। सो जब आप बोल रहे हो कि एग्जीक्यूशन नेसेसरी है, इट इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट कि आप करो। यहाँ पे आके जो भी मेहनत कर रहा है उसको बढ़िया से बढ़िया जॉब मिली आज तक की तारीख में। यहाँ पे आके या घर पे भी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत करोगे तो सब जगह सब कुछ पॉसिबल है, इज व्हाट आई बिलीव। सेम मेहनत सात्विक ने भी की। मूविंग ऑन, जब शॉपिफाई आपने चुन लिया तो इजी तो था ही नहीं। इजी तो मेरे को भी पता है, इजी तो होता है फॉर सम पार्ट्स, बट सम पार्ट्स के लिए डिफिकल्ट भी, क्योंकि उसका कोड थोड़ा अलग है। उसका कोड जानने में घुस नहीं सकते हो तुम अंदर। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन किया है आपने, कि आपने FB एड्स चलाई, कि सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रमोट किया, कि आपने गूगल एड्स पे प्रमोट किया? व्हाट वाज द बेसिक प्लान विद ई-कॉमर्स? मेरा जो है नमन जी, उसमें कैसा रहता है, मेरा जो माइंडसेट था वो ऐसा था कि हमारा जो मतलब मेरा जो माइंडसेट था वो ऐसा था कि गूगल पे जाऊं, फेसबुक पे जाऊं, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि हम फेसबुक से जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है आप लोगों को चीज दिखा सकते हो। यूट्यूब की बात मैं नहीं कर रहा, फेसबुक की बात कर रहा हूँ। उसमें मैं वहां पे था कि जब यूट्यूब का अभी एल्गोरिदम स्मार्ट हो गया है, उसके अंदर परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन आ गया है, कई सारे उसके अंदर एल्गोरिदम स्मार्ट हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया है। तो पहले क्या था, जब मैं 19 में चालू किया था, 2019 या 20 के एंड में, तब मैंने जो भी पढ़ा था तभी फेसबुक का एक ट्रेंड था और फेसबुक एक सेवी लोग था, तो उसके पास जो डेटा था फेसबुक के पास, वो किसी के पास नहीं था। और मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं जो बात है कंज्यूमर को बोलूं, सिवाय के पीपीसी में क्या होता है, वो क्लिक एंड क्लिक होता है कि जैसे आप वन सेंटेंस बोल सकते हो, उसको आप पूरा बात नहीं समझा सकते। वो वेबसाइट क्या है उसके बाद ही समझा सकते हो। बट मेरा माइंडसेट रहता था कि मैं पूरी बात उसको समझाऊं। तो मैंने वहां पे डिसाइड किया चलो अभी फेसबुक एड्स से चालू करते हैं। तो वो लोगों को बहुत ही पसंद आया। और मैं आपको बता दूं, मुझे जो कॉस्ट पर परचेस पड़ रहा, मतलब कॉस्ट पर कंज्यूमर जो पड़ा 10,000 का, मैंने जो बेस बनाया वो 30 to 40 रुपीज के आसपास का मैंने बनाया था।
क्या बात है। हाँ। तो उस समय भी मार्केट में क्या है, आप कोई भी अलग प्रोडक्ट लो लेके तो 60-70 का वो रेशियो रहेगा, 60-70 पर परचेज आपको मिलेगा ई कॉमर्स स्टैंडर्ड। और दूसरा चीज, इंडियन ई कॉमर्स में एक फ्लॉज है या फिर आप बोलो कि एक दिक्कत की बात है, वो रिटर्न है। हाँ। तो हमारा जो आरटीओ परसेंटेज है ये अगरबत्ती में उस समय जब हम एड्स चला रहे थे तब 5-7% था, और अभी तो नील है, मतलब नील के बराबर ही है, एक तो शायद आया है, ऐसा है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में लोग रिफ्यूज कर देते हैं सर, ऐसा। हाँ, हाँ। So I think you started promoting this campaign pan India, Satvik. Yes sir. And I'm very sure you must be getting lot of sales from South India, because I gone through one research which says that South Indian people who lives in South India, they're more likely to purchase without COD, whereas North India, they're more likely to purchase product on COD. Is it true, Satvik, from your experience? Sir, our market, like my consumer base is like 70% in the Maharashtra. Maharashtra. Yeah, and 30%, like 20%, 100 customer base, 70 is in Maharashtra, 20 is in Gujarat, and rest of India 10%. Right. So that's our ratio. तो आपने D2C चुना, तो बिजनेस टू बिजनेस तो करना ही नहीं था कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ही करना था? नहीं, मुझे B2B में जाना ही नहीं था, क्योंकि हमारे लाइन में क्या रहता है, B2B में कई सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है। और दूसरी चीज, हम क्या है सर, प्रीमियम बेचते हैं। तो 400 रुपीज का पैकेट एवरेज हमारा रहता है, और हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहता है वो 800 के आसपास रहता है। हाँ, तो वो क्या है कि वो स्पेसिफिक पीपल ही है, वो एफोर्ड कर सकते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है वो रहता है उसके अंदर। तो वो कंज्यूमर, मैंने सोचा कि D2C ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम कंज्यूमर को रिटेंशन अपन खुद ही कर सकते हैं, ऐसा है। तो B2B में प्लानिंग आप जाओ, अगर B2B में जाओ तो आई गेस कंपटीशन पूरा बढ़ जाएगा, और मतलब क्वालिटी भी शायद ऊंचे नीचे हो, क्योंकि सामने वाला पूरा, अगर मार्केट में बैठते हो तो बहुत सारे लोग देखते हैं और खुद का चालू करते हैं, बरोबर है। उसके बाद में फिर खुद का चालू करते हैं तो उनका क्वालिटी ऊंचा नीचा हो, तो उसमें से इस्टेब्लिश करके खुद को नया करना, खुद का एकदम प्रीमियम ब्रांड करना, वो पॉसिबल है कि इजी है कि वो कंपटीशन ऐसा ही होता है? हाँ, उसमें क्या है नमन जी, बहुत उसके अंदर टाइम जाता है। जो फर्स्टली जो चीज है वो टाइम है। देखो, मैंने 2021 में चालू किया था, दिसंबर 2020 में चालू किया था ये ब्रांड जो है, मतलब आप गिन लो 1.5 इयर्स के आसपास रहा है, तो मैं इतना स्केल कर पाया। अभी मैं B2B में होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है। वहां आप क्या करोगे, एक आगे बंदा होगा, उसको आपको प्रमोट करना है, वो आपकी चीज यस करेगा तो आप आगे बढ़ सकोगे। वो बोलेगा कि नहीं, इसका नहीं चाहिए, उसको तो अभी जो चल रहा है वो बेंगलोर से मंगा रहा है, सदर्न इंडिया से मंगा रहा है, नॉर्थ इंडिया, वो चलाएगा, ठीक है। और हम क्या है, चीज बहुत बढ़िया देते हैं, कॉस्टिंग अप जाता है, तो कंज्यूमर को बेचने में भी थोड़ा लेने में भी थोड़ा तकलीफ होता है। तो हमने क्या सोचा कि ऐसे जो कस्टमर्स है, जो फ्रेग्रेंस लवर्स है, कि जिनको ये चीज स्पेसिफिकली पसंद है, तो इनको ही हम ही डायरेक्ट मार्केटिंग करके हम ही कैप्चर करते हैं, और हम इनको डेली बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स देते रहेंगे, क्योंकि ये क्या है कि ये एक दो चीज से वो खत्म नहीं हो जाता इनको चाहिए, मतलब हर एक मंथ नया चाहिए, कुछ नया और यूनिक चाहिए, जो मार्केट में उन्होंने तो यूज बहुत सारे सालों से वो कर रहे हैं, यूनिक और नया चाहिए। तो वो चीज हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जो हमको 90% के आसपास रिटेंशन देता है, ऐसा है। एंड यू डिड फोटोग्राफी बाय योरसेल्फ? फोटोग्राफी जो वेबसाइट में जो फोटोग्राफ्स है प्रोडक्ट के, तो ये आपने खुद से किया, और यू हैव हायर्ड समवन स्पेशल फोटोग्राफर टू डू दिस? नहीं सर, ये हमारी कंपनी में सर मेरे फादर ने ही सब कुछ किया है सर। क्या बात है, क्या बात है, नाइस नाइस। वो सर क्रिएटिविटी में सर बहुत बिलीव करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिकॉज़ योर वेबसाइट लुक वेरी नीट एंड क्लीन, यस गुड ऑप्टिमाइज, नाइस 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 नाइस। एक क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है किसी से, मल्हार हैज आस्क्ड, हाउ डू यू मैनेज डिलीवरीज एंड व्हाट आर द चार्जेस? डिलीवरी में पिकर यूज करता हूँ, पिकर का जो है वो मतलब सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ, उनका जो पूरा इंटीग्रेशन रहता है 5 to 7 कुरियर के साथ। और डिलीवरी चार्ज आप मिल लो, ऑल ओवर इंडिया मुझे पड़ता है 50 के अराउंड।
50 के अराउंड। मुझे लगता है सर सबसे सस्ता ब्लू डार्ट वगैरह से कंपैरिजन करेंगे, सस्ता ब्लू डार्ट सर सबसे महंगा है और हाँ। सबसे सस्ता एक्सप्रेस भी शैडो फैक्स रहता है। हाँ, और हम सर अपने एंड से सर 10 to 20 रुपीज बेयर करते हैं, बट ब्लू डार्ट से डिलीवरी करते हैं सबका। और क्योंकि ब्लू इसमें डार्ट में एक जो उसका जो यूएसपी है वो ऐसा है कि आप कोई भी सिटी ले लो, मेट्रो सिटी, वो 1 डे में डिलीवरी करता है। यहाँ से आज मैंने पार्सल निकाला तो कल मुंबई में आ जाएगा, चेन्नई में आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा, कोलकाता में आ जाएगा, ऐसा ऐसा। हाँ। और ये कितने बाकी दूसरे वेंडर्स हैं, लाइक ये कितने दिन लगते हैं? फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सेंड इट टू महाराष्ट्र, 2-3 दिन का टाइम लगता है इसमें? महाराष्ट्र में सर आप दूसरे वेंडर से कोई भी जाओगे आपको 4 to 5 डेज लगेगा सर। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है ई-कॉमर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल आर, इफ दे आर लुकिंग फॉर सीओडी, इफ इट टेक्स मोर टाइम पीपल विल कैंसिल इट। सो प्रोडक्ट को सही समय पे पहुंचाना, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड अ वेरी गुड वेंडर की जैसे द मोमेंट इट हिट्स योर शॉपिफाई पेमेंट रिसिप्ट, है ना, इमीडिएटली कितनी देर में बंदा फिर आ जाता है आपके यहाँ पर पिकअप करने के लिए, लाइक अप्रोक्सीमेटली? मतलब रोज सवेरे सर 12 o'clock तो वो आ जाता है, मतलब 24 आवर्स का साइकिल रहता है, ऐसा है। So मिनिमम रिचार्ज दैट वी नीड टू डू, रिचार्ज मिनिमम कितने रहता है इसमें करीबन? उसमें तो सर आप कुछ भी कर सकते हो, 200-500। नाइस। तो 12 o'clock की कलेक्शन टाइम हो जाती है सामने वाले की, और बाद में वो डिलीवरी के लिए, कुरियर के लिए जो भी है सर्विस चालू हो जाती है उसकी। 12 बजे एक फिक्स टाइम है। हाँ, 12 बजे उसका जो ट्रक है वो आ जाता है और वहाँ पे हमारा पार्सल पूरा लोड होके वहां से वो लेके जाता है हमारे वेयर हाउस से ही। दिन के कितने पार्सल भेज देते भाई? लाइक वो डिपेंड्स करता है, बट 25-30 को जाता ही है। अच्छा, क्या बात है, 20-30। क्या बात है, नाइस। एंड सात्विक, बिकॉज़ आई विल टेल यू एवरीवन जो यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई का इंटीग्रेशन है विद आवर प्रीमियम वेंडर्स, एंड यू कैन सिलेक्ट ऑल दिस वेंडर्स फ्रॉम द बैक एंड ऑफ शॉपिफाई। आपको रिचार्ज करना पड़ता है एंड देन इट हैपेंस बाय इट्स ओन। सात्विक, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या लगा आपको व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज़ you know on page optimization is very important, especially for e-commerce, because e-commerce websites difficult to rank on search engines because they don't have much of content, but still we want to create content on e-commerce site. So what are your tips, someone who wants to start their website अगर शुरू करना चाहता है e-commerce का, तो आपके हिसाब से बेस्ट टिप्स क्या रहेंगे when it comes to on page part? सात्विक सर मैं स्पेसिफिकली क्या है, जो कीवर्ड्स रहता है, जैसे अगरबत्ती हमारा मेन कीवर्ड है, प्रीमियम अगरबत्ती, तो उसको मैं जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें भी यूज करना पसंद करता हूँ। और जो मेन टाइटल नेम है, जैसे अगरबत्ती है तो देव भक्ति करके हमारा अगरबत्ती है, तो देव भक्ति अगरबत्ती, तो वो एक यूनिक मुझे लगता है। दूसरी बात मैं जो भार देता हूँ वो ये चीज है कि उसमें मैं ब्रांड नेम जरूर इंक्लूड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और 3-4 जगह पे मैं ब्रांड नेम यूज करता हूँ, तो ब्रांडिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर एक हमारा जो आप यूएसपी गिन लो या फिर वो गिन सकते हो, वो ऐसा है सर कि मेरे फादर मैंने बताया जैसे क्रिएटिव है तो यूनिक नेम वो खोज के निकालते हैं। जैसे आप देवभक्ति है, धनवंतरी है, तो ये चीज सब क्या है कि जैसे आप सर्च मारोगे तो हमारा रैंकिंग आएगा ही आएगा, ऐसा है। यूनिक नेम और ब्रांड नेम, ऐसा है। यूनिक नेम, ब्रांड नेम, नाइस नाइस नाइस। और कुछ और एलिमेंट्स ऑन पेज में लाइक चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लाइक मैं सर सपोर्ट के लिए एक क्वेश्चन था सात्विक सर, sorry to interrupt, sir, I just have a small question. अभी एक बार मर्चेंट हमसे कनेक्ट हो गया, ठीक है, as you are merchant, you are having your own brand, e-commerce website, correct? तो Yes, फिर you have a potential customer base with you, correct sir? So अब हम लोग को वो शॉपर्स को मेक श्योर करना है कि वो शॉपर्स को हम एवरी टाइम कैसे कन्वर्ट रखें. डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर दैट to manage the balance ratio every month or every annual? जैसे कि आप मतलब कस्टमर को बार बार अपनी वेबसाइट से या फिर अपनी ब्रांड से परचेस करो, वैसा आपका मतलब जो क्वेश्चन है वैसा है मैडम? Yes sir, I do have a question. ओके, सो बेसिकली मैडम मैं क्या है, हम लोग का व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, तो व्हाट्सएप से उनका पूरा मार्केटिंग होता है। दूसरा में एसएमएस करते हैं और तीसरा ईमेल करते हैं, एंड द फोर्थ मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रीटारगेटिंग एड। उसका आप एक लिस्ट बना लो गूगल एनालिटिक्स से और फेसबुक पिक्सल से, और जो भी लोग आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं 1 ईयर के आसपास, 180 डेज, 90 डेज, उसका स्पेसिफिकली मैसेज से आप टारगेट कर सकते हो।
तो वो आपको 100% रिजल्ट देगा ही देगा, वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। अगर आप ठीक से मैसेज कन्वे कर रहे हो तो वो आपको रिजल्ट देगा। What retargeting basically does is, आपने अगर मिंत्रा पे गए हो, अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल अमेज़न पे गए हो, तो आप कुछ भी एप्लीकेशन भी खोल रहे हो, कोई भी वेबसाइट भी विजिट कर रहे हो, वहाँ पे आपको एड्स दिखेगी। That's what retargeting and remarketing is all about. And I think जो आप बोल रहे abandoned cart retargeting is also very important Satvik. People who are actually adding product to cart and not buying. But उसके लिए उतना we need to have that quantum before that really happens. Yeah, Yes. so we have integrated like the software Vati. You can Vati. search it. Yeah, that's Vati. the integration for the WhatsApp marketing. हाँ. So उसमें क्या है, वो ऑटोमेटिक 30 मिनट्स के बाद उसको जो नोटिफिकेशन है वो भेज देता है, उसका फॉलोअप ले लेता है। तो मैंने देखा वो 50% के आसपास जो अबंडेंट कार्ड्स है वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और So I जो think- जो नहीं कन्वर्ट होते सर, तो उसको हम ट्राई करते हैं कि उसको रीमार्केटिंग करके उसको कन्वर्ट करिए सर, ऐसा। Nice, nice. So remarketing on Facebook and Insta. Right. Yeah. Or on And display. specifically I would like to give a tip. Google Shopping Ads है, अगर आप ई-कॉमर्स करते हो तो उसमें आप जो अपने विजिटर्स है उसको स्पेसिफिकली ऑडियंस मैनेजर में जाके क्रिएट करके गूगल एनालिटिक्स के उसको आप रीमार्केटिंग कर सकते हो ऑडियंस इनसाइट्स में जाके, ऑडियंस सिग्नल में जाके। तो वो मैंने देखा कि शायद अगरबत्ती जो कीवर्ड है वो रैंक करने में बहुत ही सर मतलब कॉम्पिटिटिव है। तो आप क्या कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो। तो आपका जो कस्टमर बेस है वो जब भी अगरबत्ती सर्च करेगा तो उसको तो वो दिखेगा ही दिखेगा। मैंने देखा है उसका बीडिंग जो है गूगल हाई करता है, बट आपको जो अपने कस्टमर्स है उसको इंप्रेशन शेयर आपको बहुत परसेंटेज ज्यादा देता है, ऐसा है। So So, वो मतलब एक चीज है। मतलब शॉपिंग एड्स चलाओ बट वो भी रीटारगेट करो पर्टिकुलर एक जी। ठीक है, तो उसका मतलब इंटेंशन भी हाई रहेगा क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट भी विजिट कर ली एक बार, तो उसको फिर से ऐड मिली, फिर से आपका प्रोडक्ट देखा, तो इट इज मोर लाइकली टू गेट कन्वर्टेड, राइट? हाँ, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ नमन जी। जैसे सैंडल अगरबत्ती है, ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक कीवर्ड है। जैसे आप में डिजिटल मार्केटिंग वो बहुत बेसिक है, उस पर कॉम्पिटिशन भी बहुत रहता है, बहुत सब रहता है। तो शॉपिंग एड्स में क्या है कि आप जब क्रिएट करोगे उसके अंदर ऑडियंस डालोगे कि आपके जो विजिटर्स है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जब सैंडल अगरबत्ती सर्च करोगे तो उसमें आपके 3-4 प्रोडक्ट्स टॉप पे ही रहेंगे। अच्छा। आपका जो कंज्यूमर है आपने जो ऑडियंस में डाला होगा, तो बाकी जो नॉर्मल है जो आपको आपके ऑडियंस के लिस्ट में नहीं है उसमें आपका रैंकिंग नहीं आएगा जल्दी से। और सही। आपका जो कंज्यूमर है जब वो सर्च में आएगा तो आपका ही प्रोडक्ट दिखेगा। तो वो मैंने बताया वो बहुत अच्छा है। और वो सौरभ सर के मुझे टिप्स लेके ही मैंने वो किया था। राइट। मूविंग ऑन, आप जब ओरिएंटेशन या अलाइनमेंट रखते हो ई कॉमर्स के स्टोर का, तो फॉर एग्जांपल पहले आपका टॉप पे आता है एक पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट, राइट? ऐसे फॉर एग्जांपल सैंडल अगरबत्ती एक बार ले ले, तो उसको टॉप पे रखना चाहिए कि ज्यादा दिखाना चाहिए, होम पेज पे ज्यादा दिखाना चाहिए, या प्रोडक्ट पेज में पूरा ऑप्टिमाइज कर दो कि वो दिख जाए? कैसे करता हो अलाइनमेंट को? उसमें कैसा रहता है सर, एसईओ में हमारा क्या है सर, मैंने पहले बताया आपको, फेसबुक से मेन हमारा बिजनेस रहता है। तो हमारा क्या रहता है कि मंथली बेस पे न्यूज चाहिए, अच्छा। कुछ नया चाहिए। तो वो क्या रहता है कि मंथली बेस पर हम जो न्यू है उस पे अपना फोकस डाइवर्ट कर देते हैं। तो जो नया आया उसके अंदर मैंने बताया वो ब्रांड नेम, हम जो कीवर्ड्स है वो यूज करते हैं, और शॉपिंग एड्स में वो रिटारगेटिंग करते हैं। तो मतलब जब बंदा गूगल पे सर्च करेगा तो अपना नाम आ जाएगा, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स का वो रहता है वो टैब्स रहता है, तो प्रोडक्ट्स में अपना नाम आ जाएगा। और जब आप परफॉर्मेंस मैक्स चलाओगे, परफॉर्मेंस मैक्स करके एक कैंपेन उसके गूगल के अंदर आता है, तो वहां पे आप पीपीसी में भी रैंक हो जाओगे। अच्छा। तो वो हमारा बहुत हद तक वो काम इजी हो जाता है। तो ज्यादा हमको जरूर नहीं पड़ता है शायद। राइट। मूविंग ऑन, कुछ फाइनल क्वेश्चंस आ रहे, कुछ एनी नंबर्स दैट यू वांट टू प्रेजेंट अबाउट योर बिजनेस? यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सॉरी। मैं आपको एक बार आपको वो दे देता हूँ पोस्ट। यस।
मैंने आपको co-host बना दिया। हाँ, गिरिराज अगरबत्ती वाला। इसके अंदर वो आ नहीं रहा है ऑप्शंस। एक मिनट। शेयर स्क्रीन का नहीं आ रहा? हाँ आया आया अभी आया। हाँ। सो ये मेरा बैकएंड है नमन जी। Shopify। तो इसके अंदर आप दे सकते हो रिटर्निंग कस्टमर रेट का जो मैंने रेशियो आपको बोला था। बेसिकली हमारा इस सिस्टम में है कि जैसे कुछ मार्केटिंग ना भी करो तो भी कस्टमर्स लाके व्हाट्सएप पे चैटिंग करके हमसे परचेस करते हैं। तो 90% के आसपास उसका रेशियो है। 11 लाख की सेल है, 90% का रेशियो है। It's ridiculously tough to achieve that much. And guys, ये नंबर 86% रिटर्निंग कस्टमर रेट 86% बहुत ज्यादा टफ है फॉर एन ई-कॉमर्स बिजनेस। We just started in 2022, right? 2021 December, right? Yeah, 2020 yes, 2021 January you can specifically count that. Right. तो वो मतलब मिलना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में getting return customers and getting a sale over 1 lakh, 11 lakh rupees is just massive amount of hard work. Any tips, any questions anyone has, any tips that you would like to suggest, Satvik? Yeah, and the another the main like I would like to give the tip for this एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे आप फोकस करो जो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। देखो इसके अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू 680 के आसपास है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इंडस्ट्री से हमारा ज्यादा है, बट अगरबत्ती के लिए आप सोचो कि 700 के आसपास का जो पर ऑर्डर है वो बंदा पर मंथ जो है रिटेंशन वाला है वो 700 के आसपास खरीद रहा है, तो वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा वो खेला जाता है। इसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा जो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी एड्स में और रीटारगेटिंग में। Okay. So वो आप बिल्कुल वो आप ध्यान में कंसिडरेशन में ले, ऐसा है। Definitely. If anyone has any questions, go ahead. किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा or type that in the chat or go ahead, start your mics, start your cameras for the last time, guys. I don't think any question is there. Surely you can find Satvik on LinkedIn or anywhere else, on Instagram, everywhere else. Satvik sir, one more question. Sir, what payment gateway you suggest for e-commerce website? Which is the best one for that? I would suggest madam PayU because in the Razor Pay that's one problem, big problem I would say. That's वो लोग क्या आपको कस्टमर्स को ईमेल आईडी देना ही पड़ता है। True, yes. तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो 35 प्लस का रहता है, 40 का प्लस है, तो कई सारे वो मोबाइल नंबर से ही ईमेल आईडी नहीं भी होता उनके पास, तो वो वहां पे पेमेंट आगे बढ़ने ही नहीं जाए, तो हमारा वो एबंडेंट कार्ड रेट बढ़ जाएगा आपका। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पेयू से ही जाए क्योंकि दोनों का रेट तो सेम ही है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर बेस भी ना। तो आपका तो 35 प्लस वाले है, अगर अपना फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है वो 18 to 30 के बीच में ले रहा है तो दैट्स गुड ना, रेजर पे यूज करो या इंस्टामोज यूज करो। हाँ बट हाँ वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट मुझे पर्सनली पेयू पसंद है क्योंकि उसके अंदर क्या है जैसे कई सारे बार आप मैडम कर रहे हो तो पता होगा कि वो लीव हो जाता है, नेट बैंकिंग वो सिलेक्ट किया और HDFC किया, बट वो इन बिटवीन गैप रह जाता है, वो कंप्लीट भी नहीं होता है और फेल्ड भी नहीं होता है। राइट। तो वहां पे पेयू वाला क्या है कि आपको 10 to 15 मिनट से वो पूरा प्रोवाइड कर देता है कि क्या उसका सॉल्यूशन है, बट एज कम्पेयर टू रेजर पे वो 30 to 35 मिनट्स रहता है। अगर आप सोचो कि आप Amazon पे गए या फिर किसी भी साइट पे गए और उसके बाद आपने पेमेंट हो गया, डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट से, बट वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, वो तो Amazon है तो आप समझ जाओ कि हाँ चलो बहुत बड़ी ब्रांड है, कुछ हमारे साथ होगा नहीं। बट अगर स्मॉल स्केल ब्रांड है तो आपको मतलब वो कंटिन्यूअस वो रहेगा कि क्या आप कर सकते हो, तो वो मैं पेयू में वो अच्छा है। राइट। बंद कर देगा ना आवाज, बंद कर देना। Anyone else? Sir, one more question. Yeah, go ahead. Oh, you're muted. Yes, tell me madam.
So what are the basic retention tools to get our previous customer back? As you said, आपने बताया कि retention is the must for any business, B2B or B2C, correct, sir? So what are the basic Yes, retention yes. tools we can use in e-commerce website? So you can note it down, madam. Firstly, you have to decide what message you want to convey or what's your USP that consumer wants from you. जैसे कि आपका ये चीज है वो मार्केट में सब आपके जो कॉम्पिटिशन है उसके यूनिक है, तो वो चीज आप नोट कर ले, उसके अराउंडिंग आप मैसेजिंग बनाए कि देखो ये मेरा यूएसपी है, आपको पता चल गया। उसके अराउंड आप क्रिएटिव्स बनाए कि अलग अलग एंगल्स बनाए, ठीक है। वो एंगल्स आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। कि आपने नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, हेलो, गुड। हाँ, कि आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये उसका यूएसपी है और ये हमारी कंपनी का यूएसपी है। वही यूएसपी आप मार्केट कीजिए रीटारगेटिंग एड्स में और व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अगर वो कंज्यूमर को लगेगा कि नहीं ये जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, तो वो 100% रिटर्न हो ही जाएगा। तो वो बेसिकली यही रहता है, उसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो जाएगा। राइट। और इसमें बेसिक टूल्स तो मतलब डिलीवरी एप्लीकेशन चाहिए और उसके साथ में बेसिक टूल्स में एक आपको व्हाट्सएप का पूरा चाहिए कि ये हमारा व्हाट्सएप है, और वाटी करके है, उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसमें आप 200 के आसपास मतलब पर आप जब अप्रूवल लोगे 1000 के आसपास पर डे डाल सकते हो मैसेजेस। ओके, ऐसा है। तो उसके अंदर आप सिर्फ आपको क्लिक दबाना है और 1000 जन को वो मैसेज पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पे। तो वो है, और दूसरा तो रीमार्केटिंग है। मुझे लगता है कि और ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे लगता है। हाँ जी, ईमेल सर इम्पोर्टेंट है, मुझे उसका पता है। पर सर हमारे कंज्यूमर्स है वो आप गिन लो कि 70% के ईमेल है ही नहीं। हाँ। तो हम ईमेल मार्केटिंग में थोड़ा फोकस कम रखते हैं सर, ऐसा है। राइट। हमारे पास डेटाबेस है, बट डेटाबेस में ईमेल कई सारे कंज्यूमर्स के है ही नहीं, क्योंकि वो ओल्ड एज है, 40+ है, 35+ है, तो वो ईमेल से ज्यादा फोन नंबर को प्रेफरेंस देते हैं एज अ कम्युनिकेशन चैनल। Nice. Anyone else? If anyone else has a question, go ahead. If you have any questions, please go ahead. Also start your camera, guys. सर Go ahead. Yes. सर मुझे ये जानना था कि हम रीमार्केटिंग कितने टाइम में कर सकते हैं और कितने टाइम करना चाहिए, लाइक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, कितनी टाइम करना चाहिए? मेरे ओपिनियन से मैडम आपको चालू ही रखना चाहिए रीमार्केटिंग, अगर आपको बढ़िया रिटेंशन चाहिए तो। अलग अलग मैसेज से आप रीमार्केटिंग चालू रखें ऑन द फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन द यूट्यूब एंड, क्योंकि वो क्या है कि आपका जो ब्रांड है वो उनकी जो मगज से वो जाएगा नहीं। आप उनके स्क्रीन टाइम में एक दिन में थोड़ा सा हिस्सा तो आप रखोगे, तो जब भी वो प्रोडक्ट का इसको होगा कि नहीं मुझे ये अभी खरीदना है, तो आपका जो ब्रांड है वो दिमाग में आएगा कंज्यूमर का कि हाँ इसका मैंने वो ऐड देखा था, उसका मैंने वो ऐड देखा था। और अगर आप कॉस्टिंग का सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊं, जो फेसबुक में है वो आप क्या करो, आपका जो कस्टमर लिस्ट है, जैसे हमारा 10,000 का बेस है, तो हम क्या करते हैं वो लिस्ट बना के अपलोड कर दो फेसबुक पे, तो वो ऑटो टारगेटिंग वो ले लेगा और उसके अंदर आप रीच का कैंपेन चलाओ, अवेयरनेस का, ठीक है। वो आपको 50 to 60 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन वो दे देगा, और वो बहुत ही सस्ता और सटीक वे है वो, आप मैं बता सकता हूँ आपको। और डेली 2 days या 3 days में क्रिएटिव चेंज कर दो और मैसेजिंग थोड़ा ट्विस्ट कर दो, चेंज करते रहना है, लाइक हाँ मैसेजिंग ट्विस्ट करके चेंज करके, बट अल्टीमेट जो मैसेज है वो सेम है, और उसका प्रेजेंटेशन है, एंगल से वो थोड़ा चेंज करके करके आप उनको कम्युनिकेशन में थोड़ा ट्विस्ट लाके बता देना है। हाँ राइट। Anyone else? If you have a question. Sir, last question. Yeah, go ahead, not an issue. Satvik sir, I just wanted to know if
ऑडियंस आप कैसे टारगेट करते हो? प्रीवियस ऑडियंस यू नो दैट आर कनेक्टेड विद यू ऑलरेडी, करेक्ट, बट हाउ टू टारगेट द न्यू ऑडियंस ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट? हाँ, प्रीवियस ऑर्डर्स का मैंने बताया। मैं अभी न्यू जो ऑडियंस है उसका मैं आपको बताऊं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, तो आपको एक चीज चाहिए, वो है अच्छा क्रिएटिव, ठीक है। और एक नहीं चाहिए, वो 3-4 अलग अलग क्रिएटिव चाहिए। और आप फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे सेल्स करके कैंपेन है, कन्वर्जन या फिर सेल, जो जब भी आपने बनाया होगा 2 इंटरफेस आता है। कभी कभी फेसबुक में सेल्स भी आता है, मेरे 2 अकाउंट से, तो उसमें एक सेल्स रहता है, इसमें कन्वर्जन रहता है। तो वहां पे जाके कैंपेन आप क्रिएट करो, उसके अंदर जो गोल है वो डालो कि मुझे वेबसाइट परचेजेस चाहिए, पिक्सल इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट पे, और अपना क्रिएटिव डाल दो। फेसबुक क्या इतना एडवांस मशीन लर्निंग है मैडम, तो वो क्या है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, तो वो भी आइडेंटिफाई कर देगा, उसका जो कस्टमर है वो भी उसको पता है आप, और वो क्या करेगा कि उसको चांस देगा। मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे आप ऐसे कैंपेन आपने बनाया, तो फेसबुक अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ढूंढेगा कि ये जो क्रिएटिव है और ये जो मैंने ऑडियंस टारगेट किया है, उसके अंदर इन मार्केट ऑडियंस कौन सा है जो अभी एक्टिवली सर्च कर रहा है, या फिर उसको चाहिए वो चीज, उसको पता रहता है फेसबुक को, तो उसको वो एड टारगेटिंग करेगा। और अगर आपका क्रिएटिव और मैसेजिंग बढ़िया हुआ तो आपको कन्वर्जन 100% मिलेगा। Cold हाँ, audience बेसिक फंडा है मैडम। you can also go for cold audience as well. तो मतलब उसमें भी हाँ, वो कोल्ड ऑडियंस में मैडम ने कोल्ड ऑडियंस के बारे में पूछा है नमन सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि फॉर एनी बिजनेस कोल्ड ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर क्योंकि कोल्ड ऑडियंस सस्ते में पहुंच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, पीपल गेट टू नो अबाउट योर ब्रांड, बिकॉज लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे नहीं तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दे विल टेक। So this is again very important. मुझे लगता है सात्विक, lot of business owners they focus only on conversion and lead, but brand awareness is also very very important goal. absolutely. Yeah, sure sir, sure. But yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Nice nice nice. So any questions if you guys have, go ahead. Yes. Just go ahead, Bhavan. સાત્વિકભાઈ, હા બોલો. આપણે એક સાથે કેટલા રીમાર્કેટિંગ માટે શું કહેવાય નંબર્સ આપણે ફેસબુકમાં એડ કરી શકીએ? એટલે તમે કસ્ટમર લિસ્ટ પૂછો છો? યસ. હા, એમાં તમે જેટલા બી હોય એટલા કરી શકો. અમે તો 10,000 એક સાથે કર્યા છે, તો કોઈ એમાં પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. તમે 10,000 નું કરશો તો અમને 7 to 8,000 કસ્ટમર મેચ મળી ગયા છે. કે 20% ની આસપાસ એ લોકો નથી, એ લોકો ટ્રેક કરી શકતા, અથવા તેમની પોલિસી હશે, ગમે તે હશે, પણ 7 to 8,000 અમે રેગ્યુલર બેસિસ પર રીમાર્કેટિંગ કરીએ એવું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. मिनिमम साइज 1000-2000 का मिनिमम साइज कम से कम चाहिए भाविन, तो so that Facebook will try to optimize. So minimum size has to be there. Yes और sir. it also depends कि what is the quality of the list. उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका लिस्ट का क्वालिटी कैसा है. Yes sir. So the game is in the money is in optimization, because यहाँ पर भी सात्विक अगर कैंपेन चला रहे हैं, मैं कैंपेन चला रहा हूँ, so we need to look the campaign at regular basis and then to see if it's really giving us profitable business or not. This is important. But जैसे email list का that always work on Facebook. You talk about Facebook, you talk about Google Ads. वो तो आपको करना ही करना चाहिए. But I'll tell you, customer match, when we talk about Google Ads, customer match is not available with all the accounts, because उसके लिए minimum कुछ 5-1 लाख का lifetime budget चाहिए. I'm not sure about the number, but कुछ number आपको चाहिए before you retarget them on Google Display और Search Network. या वो कस्टम सर, उसमें $50,000 का कुछ एड स्पेंड चाहिए रहता है. Yes. तो जैसा मैंने क्लास में बताया था, our account is eligible, but probably if you want to target on Google Display Network, it becomes very difficult. कर सकता हूँ. मुझे तो क्रिएटिव का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, because responsive ads, because Google Ads का बात कर responsive है, video ads है, carousel ad है, catalog है, so that's gonna add a lot of value. तो कमाल का काम कर सकता है. और ईमेल मार्केटिंग के लिए मुझे लगता है कि ई-कॉमर्स आपका बिजनेस तो व्हाट्सएप का है, बट Klaviyo is an amazing choice. Klaviyo है, lot of people they use Klaviyo सात्विक. यस, ईमेल मार्केटिंग के लिए सर वो बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया है. और आपको क्या लगता है, किसी को अगर ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना हो, जेनरिक आइडिया, व्हाट शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट? आपको क्या लगता है कि पहला इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है सात्विक? Let's say for example Bhavin wants to start e-commerce business. So what is the minimum investment he has to do on setting up the setup, digital marketing tools और content? क्या लगता है कितना पैसा मिनिमम लग सकता है इसके अंदर?
सर इन्वेंटरी को मैं छोड़ दे रहा हूँ, हाँ क्योंकि इन्वेंटरी तो डिपेंड रहता है, हाँ। बट आई थिंक आपको 1.5 lakhs 2 lakhs तो चाहिए इंडिया में भी, क्योंकि करीबन अभी सर CPM भी बढ़ गया है और आपको टेस्ट एंड ट्रायल करके क्रिएटिव्स भी बनाना है, हाँ तो उसके लिए भी आपको अमुक टूल्स चाहिए, जैसे आपको फिल्मोरा चाहिए, उसके लिए प्रोसेसिंग का लिए पूरा मतलब आपको फोटोज चाहिए, क्रिएटिव्स हाँ के लिए आपको कैमरा चाहिए, फिर वो सब हो जाए, वो बन गया, उसके बाद आपको एड्स के लिए टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो वो कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है या फिर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो 1.5 लाख तो मुझे लगता है मिनिमम सर चाहिए। इनमें चाहिए होगा, मुझे लगता है एटलीस्ट आने वाले 2 महीने के अंदर या 3 हाँ महीने का मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट तो लगेगा बिफोर वी स्टार्ट। इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। 100% मुझे लगता है कि बिकॉज अगर सही तरीका नहीं है, if set up system, because I'll tell you that e-commerce is growing, but we need to have a system. जैसे for example Satvik is using Vati का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, if you don't have Vati how we going to optimize it for WhatsApp, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा आपको। सो ईमेल है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, SMS में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शॉपिफाई में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कंटेंट बनाने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और जैसा कि आपने बोला व्हेन वी ट्राई एंड टेस्ट, क्रिएटिव्स को भी साथ में ट्राई एंड टेस्ट करना है, तो कुछ मिनिमम बजट तो चाहिए। वी जस्ट कैन नॉट पुट 100 200 एंड ट्राई एंड टेस्ट, लाइक देयर हैज टू बी सर्टेन ऑडियंस जहां तक हमको पहुंचना होगा बिफोर गो अहेड। हाँ सर वी हैव स्पेंड अराउंड यू विल नॉट बिलो 10 lakhs rupees, 10 to 12 lakhs on the Facebook ads platform. So we have to give them a time. And I have also tested like all the campaign, all the creatives and all the objectives. मैंने अवेयरनेस से लेके कन्वर्जन से लेके सभी में कोरोजल लेके सब कुछ टेस्ट किया है। तो वो एक एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इन गेम नहीं हो, किसी पे भी मजा नहीं आएगा, वो करना ही पड़ेगा एक बार। That's okay. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर ₹1,00,000 का बिजनेस हर महीने करना है, 2 लाख का बिजनेस करना है, तो पहले 1-2 लाख खुद पे तो खर्च करना पड़ेगा, सिस्टम पे तो खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम खर्च करेंगे, हम 10,000 रुपए नहीं खर्च पा रहे, तो the point is how we going to make 1 lakh rupees of sale. Because I'll tell you, system is important, as Satvik said. 3-4 चीजें वो तो बिल्कुल जरूरी है for any business. और आप क्या टिप देंगे, to stay positive, because you are very positive, Satvik. सर वो तो बस आपकी सर गुरु का जो आशीर्वाद है उससे ही आप पॉजिटिविटी और भगवान में आप विश्वास रखें, 2 चीजें सर, बाकी तो बिल्कुल एंड don't get into small talks, very important. और सर एक मैं जो बिगिनर्स है उसके लिए टिप्स देना चाहूंगा। आप जो भी बिगिनर्स है वो आप Shopify के वेबसाइट बनाएं, और अगर आपके पास है 2-3 हजार रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, ऐसा है तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप क्या कीजिए, वो Shopify 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है, तो आप कोटक महिंद्रा में जाए, ठीक है, तो 811 वाला आप अकाउंट खुलवा ले, ठीक है, उस जीरो बैलेंस मेंटेनेंस है, तो उसके अंदर तो आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, वो डेबिट कार्ड के साथ आप Shopify के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करवा ले, वेबसाइट पूरा बना ले। Shopify के अंदर क्या एक सिस्टम रहता है, 14 डेज के बाद वो आपको चार्ज करने का ट्राई करेगा, और उसके बाद भी आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड देगा, कि वहां पे आप उसका पेमेंट 30 डेज कर सकते हो, मतलब हो गए 44 डेज के आसपास, तो वो आप बिना पैसे के चला सकते हो। और आप लगे कि चलो अभी 43 डेज हो गया है, तो वहां से आप निकल जाओ, ठीक है, दूसरा अकाउंट बना लो, जब तक आप टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हो तब तक, तो वो आपको वेबसाइट एक पूरा आप सीख जाओगे बिना पैसे का। तो वो एक मैं आपको बोल सकता हूँ एक बढ़िया ट्रिक है। और दूसरा चीज, अभी इंडिया में गूगल एड्स के 20,000 रुपीज एड क्रेडिट दे रहा है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, और आप 40,000 के आसपास उसका एड स्पेंड करके वो पूरा, मुझे लगता है गूगल एड्स से 40,000 में आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हो। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं आप सभी के लिए बता दूं, सात्विक का शॉपिफाई ने इंडिया में बहुत कम दाम का स्टोर भी नीचे लॉन्च कर दिया अभी सात्विक। जी सर, 350 या 500 रुपए महीने के आसपास। जी सर। I have not seen the features, मैंने उसके फीचर्स अभी नहीं देखे हैं, I have not compared it कि जो 3-3,500 रुपए 2,500 रुपए का जो पैकेज है और इसमें क्या अंतर है, we have not seen that,
बट मुझे लगता है कि अगर शॉपिफाई ने लॉन्च किया तो अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकता है. सो शॉपिफाई बिल्कुल चाह रहा है कि लोग अगर पैसे कम भी हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम भी कर रहा हो, ट्राई टेस्ट करना. शॉपिफाई का पेड वर्जन जो बहुत मिनिमम से शुरुआत हो रहा है, पीपल कैन ट्राई दैट एज वेल. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. वो मैंने देखा था कुछ, पर उसका भी मैंने फीचर्स वो देखा नहीं है सर. हाँ. Nice. So, कोई questions हो तो please come forward. Go ahead and ask it. Just a few minutes before we end the show. Nice. It was so amazing having you, Satvik. So I think whenever I meet you, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि you are so young, so motivated, so focused. I give you example in my class as well, Satvik. मैं आप example भी देता हूँ because you are one of my best student. मुझे लगता है जो कमाल का काम कर रहे हैं. And future belong to all those people who are committed. उन्हीं के पास ये लोग कमिटेड है. एक्शंस लेने पड़ेंगे. यहाँ पर देखिए, आप अपना बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो नुकसान के लिए भी तैयारी रखना होगा. बट इफ यू हैव गुड नॉलेज, द मोर यू प्रैक्टिस, लॉस कम करने की पूरी गुंजाइश होती है. बट इट हैपेंस विद ऑल द बिजनेसेस. आई टेल यू, इट्स नॉट अबाउट ई-कॉमर्स. यू टॉक अबाउट एनी बिजनेस. हर एक बिजनेस में पहले पैसा लगता है, कुछ चीजें होती है. वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. So number one is you need to have a mindset. Now you are not working somewhere. You want to have your own business. That mindset needs to be set first. अगर वो mindset ही नहीं रहेगा ना, तो आप 2000 रुपए खर्च करने में भी डरेंगे आप. तो आपको पहले समझना पड़ेगा what is investment and what is an expense. For example, Shopify store low package, initial package, that is always an investment. वो तो करना पड़ेगा. फेसबुक एड्स तो चलाना पड़ेगा, अच्छी क्रेडिट्स बनाने पड़ेंगे. बिकॉज आई टेल यू सात्विक, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, बिकॉज अगर मैं खुद के बारे में बात करूं तो, या फिर ब्रांड विदा के प्रमोशन के लेके बात करूं तो फ्रॉम 11-12 years वी आर पंपिंग लॉट ऑफ मनी. हम बहुत पैसा डाल रहे हैं. और मुझे एक चीज लग रहा है, टारगेटिंग एवरीथिंग इज ओके बिकॉज वी ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी महसूस कर रहा हूँ, व्हिच आई एम फीलिंग एज ऑफ नाउ, इज द कम्युनिकेशन इज चेंजिंग है. कहीं ना कहीं एड क्रिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. बिल्कुल सर. बिल्कुल. कई बार हम लोग क्या टारगेटिंग भी सेट कर लेते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है, बट वेयर वी फेल इज द कम्युनिकेशन पार्ट, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो कहने का मतलब है अच्छे क्रिएटिव चाहिए, कम्युनिकेशन. पहले क्या था, जब iOS वो 14 रोल आउट नहीं हुआ था, तब क्या था, उसके अंदर एक फेसबुक का फीचर्स रहता था कि वो उसके पास इतना पावर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, तो वो आपको कोई भी क्रिएटिव उठा के डालो, वो परचेस आपको दे देता था. बहुत नहीं देता था, बट इनिशियल पे 20-30 परचेस आपको मिल जाता था. ठीक है. बट अभी क्या हुआ है सर, जो iOS 14-15 रोल आउट हुआ है, उसके अंदर पूरा इकोसिस्टम फेसबुक का चेंज हो गया है. तो अभी जो इम्पोर्टेंस रह गया है, तो वो है कम्युनिकेशन का. बिल्कुल. सो वो कोर पार्ट है सर, वो आपने बताया सर. बिल्कुल. क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर काफी सारे ऐड अभी टेस्ट कर रहे हैं. So एक ऐड नहीं, यहाँ पर काफी टेस्टिंग करना होगा. We need to look into reports. We need to see what is working, what is not working, and then we're gonna have tools and knowledge, which is again very important. But I think this is the right time because साथ में e-commerce को शुरू करना है. 2022 कमाल का हो सकता है because the world is on the web. E-commerce market is growing. D2C is growing. The point is we need to get on the web. We need to start promoting it. GoDaddy ने भी कुछ अच्छे plans अपने launch किए हैं फिलहाल recent days में. So lot of options are coming in. Sir, Dharti wants to share something. Go ahead, Dharti. Go ahead, Dharti. The very first thank you to you. मैंने 1st अगस्त से आपका बैच ज्वाइन किया, करेक्ट? एंड आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का we had a lesson on that. आपने you give me the knowledge, correct? And आपने मुझे Canva बताया था, the website to create graphics on that. I had a question that time also during the classes, and because of you, I got a client of real estate, and I have created 2 graphics of Raksha Bandhan as well. In future, even I'll get the client for that, to creating the festive post and any product related poster. Thank you, sir, for that. Nice, Dharti. I'm so happy. Great, that's great. Nice. That's amazing. So guys, start taking action. Satvik, we are so happy. We are so honored to have you on board. Because I tell you, I didn't ask anything from that client as of now, because I've just created 2 posts. I have not given any quotation because that is new. I can write the content, but I cannot design a graphic. I need a designer for that. But now, apart from your learning, and as you said, be committed on your work. From that word, I have been inspired in a many ways, sir. I'm a paralyzed person, as you know, sir. But now I need to
show my inputs and what I am learning from you, sir. And I have got a real estate client. So it is a big company in Surat, sir. Nice. Nice. Thank you once again, sir. Can I tell you? Yeah, welcome. I'm very sure you will grow. Can I tell you one क्या thing? माने वाले सब लोग कमाल का काम करने वाले हैं. See, one thing I would like to add is you might have some problems in your life and everything. Everyone has their problems. There some might be physical disabilities, but unless and until your mind is strong, nothing can beat you. Nothing can ever touch your mind, and nothing can move your mind if you have that kind of mentality. All you need to do is have that mindset and go ahead and kill every field that you work in. Just nail it. अगर आप ग्राफिक्स भी कर रहे हो उसमें घुस जाओ, उसमें रियल एस्टेट में घुस रहे हो तो उसमें घुस जाओ. बस एक चीज समझना है कि when you are in a field, when you are in something new, you have to become, and it is passionate, right? You're getting inspired by this field. तो उस फील्ड में आपको बेस्ट ही बनना है, बाकी कुछ नहीं. That's the one thing that you should have in your minds. Yes, absolutely. Yes. I'm so happy, Dharti. Wishing you all the best. So I wish you all the best. Satvik, we are so honored to have you here because I'll tell you, bringing experts on guest talk, it takes a lot of efforts, trust me. And as you all know that we always do this session. Last time we called Shri Yog from Germany. Before that we called Vyoma. So a lot of other experts are lined up. So मैं चाहूंगा कि आप सब बिल्कुल ज्वाइन करते रहें because you never know, a session can change your life completely. And this was a very good, very raw Satvik आज का conversation. बहुत raw था, बहुत native था, straight to the point था, a lot of takeaways. So someone who wants to start e-commerce, I think a lot of things have been discovered. Yes, But only thing is what we need to do is हमने जहाँ पे सीखा है, probably we need to go. So what you can do is you can make a checklist. Like, okay, we talked about Vati, let's take Vati. Let's take Shopify. Let's try to get some products on board. And obviously, if you need any kind of help, you can always get back to us. Fine. So thank you so much, Satvik, Sneha, So, Dharti, Bhavin. so Go Fine. ahead. सर जस्ट अ सेकंड सर मुझे इसकी लिंक चाहिए. मैंने आधे में से मतलब स्टार्ट किया. We'll do that. We'll do that. It will be Share posted it, on share social it. media. No worries. That's not an issue. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Satvik. I wish you all the best. I want to see you the best agarbatti company in India and in coming years across the globe. I want you to grow. I want you to prosper. This is what my wishes है. मैं चाहूंगा आप कमाल का काम करें. You're doing Thank you, amazing job at this age. Amazing job. Coming years, I'm very sure you're going to make a lot of money. Take care of your health, and we wish you all the best. Sure. And thank you so much. Have a good day. Bye, Satvik bhai. All the best. Anyone has a question, you can. I put my Insta ID. You can directly message me. So if anyone has question, Yeah, Satvik Patel, you Sure, please. I will try to help. If you are launching something or if you have any questions. Nice. और मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर गिरिराज अगरबत्ती में जाएं and buy some amazing products from the store. Definitely. Nice. I'm looking for orders, guys.